As we know that electric potential V is equal to W upon Q. As we know that electric potential V is equal to W upon Q, it implies that W is equal to V into Q. Since current I is equal to I is सर नमस्ते नमस्ते बेटा नमस्ते I जो होता है current is equal to charge upon time taken. It implies that Q is equal to I into T, current into time taken. Q की वैल्यू हो जाएगी I into T. तो यहाँ पर W is equal to V into Q है. इस वैल्यू को हम ये कहेंगे, ये इक्वेशन 1 है. Substitute this value in first. इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो W is equal to क्या हो जाएगा? V multiplied by I multiplied by T. मतलब मैंने Q की जगह लिख दिया I into T. Q की जगह I into T हमने लिख दिया. अच्छा, अब इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2. अब बोलेंगे सिंस V is equal to IR, since V is equal to IR, या आप ऐसे ही रहने दो उसको, आगे मत करो. W is equal to VIT आ गया ना. तो इसमें लिखेंगे assume that all the electrical work done is converted all the electrical work done is converted into heat energy, is converted into heat energy. Full stop. So we can write, heat produced, we can write heat produced in place of work done, in place of work done in the above equation, in the above equation. Therefore, heat produced H is equal to VIP. H is equal to VIP. Since V is equal to IR as per Ohm's law. Therefore, H is equal to V की जगह आ जाएगा IR.
IR into I into T, which is equal to I square R into T. अच्छा, ये करने के बाद में यहाँ तक नोट कर लिया सभी बच्चों ने? सर थोड़ा सा रह रहा है बस। कर लीजिए। मैं बेटा इस साइड वाला मिटा दूं, इस साइड वाला, ये वाला अगर हो गया तो? यस सर। हो गया। पार्ट कहता बताओ, ये वाला हो गया बेटा? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद दिस फॉर्मूला gives us the heat produced in joules, gives us the heat produced in joules when a current of capital I amperes, when a current of capital I amperes flows in a wire, flows in a wire of resistance R ohms or of resistance R ohms for time t seconds, for time t seconds, full stop. This is known as Joule's law of heating. This is known as Joule's law of heating. ये जो होता है H is equal to I square RT, इसको हम Joule's law of heating भी बोलते हैं. This is known as Joule's law of heating. So we can say that H is directly proportional to I square. H is directly proportional to R and H is directly proportional to T. H I square के directly proportional है, H capital R के भी directly proportional है और H time के भी directly proportional है. मतलब करंट जितना बढ़ेगा उतनी ही हीट प्रोड्यूस बढ़ेगी, या रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतनी ही हीट प्रोड्यूस बढ़ेगी, या किसी भी वायर में जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट पास होगा हीट भी उतनी ज्यादा ही प्रोड्यूस होगी. मतलब टाइम, रेजिस्टेंस और करंट जितना ज्यादा बढ़ेगा हीट भी उतनी ज्यादा ही बढ़ेगी. यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं एंड दिस रिलेशन इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. चलिए अगला एक क्वेश्चन नोट करेंगे. A potential difference of a potential difference of 250 volt is applied across a resistance
is applied across a resistance of 500 ohm in an electric iron. Resistance of 500 ohm in an electric iron. In an electric iron. Full stop. Calculate फर्स्ट पार्ट है करंट. कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा करंट और सेकंड पार्ट बेटा इधर वाला मिटा दूं सभी बच्चों ने नोट कर लिया हो तो ये वाला पूरा क्वेश्चन. यस सर. यस सर. हो गया ठीक है. कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट है करंट एंड सेकंड पार्ट में है हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 सेकंड्स. हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 सेकंड्स. अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा. इन्होंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट. इसका मतलब कैपिटल V की वैल्यू है 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम. मतलब कैपिटल R की वैल्यू है 500 ओम्स. ठीक है. इन एन इलेक्ट्रिक आयरन कैलकुलेट करंट. मुझे करंट फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट पार्ट में हम बोलेंगे एज पर ओम्स लॉ. एज पर ओम्स लॉ V is equal to IR, which implies that I is equal to V upon R. मतलब 250 upon 500, 1 upon 2, मतलब 0.5 एम्पियर. क्लियर है. 0.5 एम्पियर आ गया. उसके बाद सेकंड पार्ट बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. वो सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन जूल्स इन 10 सेकंड्स. इसका मतलब H पूछ रहे हैं तो H is equal to I square RT. I कितना निकाला 0.5. 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस है 500. ठीक है. आप देख रहे हैं कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस कहां पर होगी जहां रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा. तो रेजिस्टेंस देखो कितना दे रखा है 500 ओम. इतना ज्यादा रेजिस्टेंस और टाइम कितना है 10 सेकंड्स. तो 10. याद रखिएगा टाइम को हमेशा सेकंड्स में ही लेंगे. सिर्फ और सिर्फ जहां पर ये पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो वहां पर हमको टाइम आवर्स में लेना होता है और पावर को लेना होता है किलोवाट में. तो वहां हमारी जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आती है किलोवाट आवर. याद है ना कल कराया था. यस सर. यस सर. यस सर. बाकी सब जगह हम टाइम को सेकंड्स में ही लेंगे. ठीक है. आज हर्षित नहीं है ना ऑनलाइन. हर्षित नहीं है आज. 0.5 का स्क्वायर ये हो गया 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 500 इंटू 10. पॉइंट गया नीचे आ गया 100. 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया. 25 5 जा 125 इंटू 10 1250 जूल्स. ये कौड़ा काम है तुमने कर दिया था. ठीक है बिल्कुल आंसर इसका 1250 जूल्स. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड calculate the heat produced when 96,000 coulombs of charge when 96,000 coulombs of charge is transferred in 1 hour is transferred in 1 hour is transferred in 1 hour to a potential difference of 50 volt to a potential difference of 50 volts, potential difference of 50 volts। इसका देखिएगा सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर मेरे को चार्ज दे रखा है, चार्ज कितना है 96,000, कैपिटल Q इज इक्वल टू 96,000 कूलम्स, ठीक है। ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर, इट्स ट्रांसफर्ड इन 1 आवर। तो टाइम मुझे दे रखा है 1 आवर, जिसको मैं कन्वर्ट करूंगा सेकंड्स में, 1 into 60 into 60, ये हो जाएगा 3600 सेकंड्स। 96,000 कूलम और टाइम हो गया 3600 सेकंड्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स, ठीक है। बी दे रखा है मुझे 50 वोल्ट्स। वो पूछ रहे हैं कि हमको हीट एनर्जी बतानी है कि हीट एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे को चार्ज दे रखा है, टाइम दे रखा है, मैं यहां से वैल्यू निकाल दूंगा करंट की। Since I is equal to Q upon P, ये हो गया 96,000 अपॉन टाइम 3600, 20 से 20 कैंसिल, 12 3 जा 36, 12 8 जा 96 और 0, ये आ गया 80 अपॉन 3 एम्पियर। ये आ गई बेटा करंट की वैल्यू। अच्छा, और ये पूछ रहे हैं हमसे कि आपको निकालना है हीट एनर्जी प्रोड्यूस, ठीक। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस के लिए मैं VIT भी लिख सकता हूँ। हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू VIT, ठीक है। समझ रहे हैं ना, ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ वोल्टेज और करंट दे रखा है। वोल्टेज की जगह अगर मैं IR लिख दूंगा तो IR इंटू IT कितना हो जाएगा, I2RT। तो VI भी तो लिख सकते हैं, इसको VIT लिखवाया था आपको, ठीक है। समझ रहे हैं नहीं बेटा, ये क्लियर है सभी को कि नहीं? यस सर। ठीक है, Yes, sir. 50 हो गया और करंट की वैल्यू हो गई 80 अपॉन 3 एंड टाइम टेकन इज 3600। तो 3 12 जा 36 और 2 जीरो आ गए यहाँ पर, 12 5 जा 60, 1 2 3 3 जीरो और आ जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 80, 8 6 जा 48 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 48 into 10 की पावर 5 जूल्स। ये हमारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस आ गई, 48 into 10 की पावर 5 जूल्स। सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब नोट करें, मैं 1 मिनट जरा पानी पी रहा हूँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। ये वाला सभी को क्लियर है ना? 48 इंटू 10 की पावर 5। Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल two conducting wires of the same material two conducting wires of the same material and of equal lengths and equal diameters and of equal lengths and of equal lengths and equal diameters are first connected in series and then in a parallel circuit are first connected in series and then in a parallel circuit across the same potential difference across the same potential difference full stop across the same potential difference full stop. The ratio of heat produced in series and parallel combinations the ratio of heat produced in series and parallel combinations would be A part है 1:2 A part है 1:2 B part है 2:1 C part है 1:4 और D part है 4:1। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी बच्चे ध्यान से। मैं बताता हूँ करना क्या है इसमें। इन्होंने बोला है कि टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब क्या है कि उनकी रेसिस्टिविटी सेम होगी। ठीक है, एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल डायमीटर्स। लेंथ भी इक्वल है, लेंथ इक्वल है इसका मतलब दोनों का एल सेम है। डायमीटर इक्वल है इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। जब लेंथ भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है और मटेरियल मटेरियल यानी कि रेसिस्टिविटी भी सेम है, इसका मतलब उन वायर्स का रेसिस्टेंस भी सेम होगा। Two conducting wires of same material, equal length, equal diameters are first connected in series and then in parallel। तो जब ये सारे पैरामीटर्स इनके सेम हैं तो इसका मतलब इनका रेसिस्टेंस भी सेम होगा। ये समझ में आ गया सभी को? हमने कहा कि जो R होता है ना, R इज इक्वल टू ये होता है रो L अपॉन A। उन्होंने बोला सेम मटेरियल, जब सेम मटेरियल है तो रेसिस्टिविटी भी सेम होगी दोनों की। जब सेम लेंथ है यानी कि लेंथ वायर की सेम है, जब सेम डायमीटर है तो यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम। ठीक, तो इसमें आप लिखेंगे हम यहाँ पर ये कहेंगे इट इज गिवन दैट
It is given that two wires have same material, that is same resistivity. Same resistivity में शॉर्ट में लिख रहा हूँ रो, सेम रो, सेम लेंथ, that is same L, L सेम हो जाएगा, same diameter, diameter same, that is same A, area of cross section ये भी same है. So let the resistance of each wire be capital R. रेसिस्टेंस इक्वल होगा दोनों का, हमने मान लिया कि वो रेसिस्टेंस हो गया कैपिटल R. अच्छा जी, इसके बाद मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं. लिखिएगा, उन्होंने बोला है the wires are first connected in series and then in a parallel circuit across the same potential difference. तो एक बार वायर्स को सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एक बार पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस वुड बी, तो हीट प्रोड्यूस्ड का रेशियो क्या होगा वो बताना है. मैंने कहा ये हो जाएगा केस फर्स्ट. केस फर्स्ट में लिखिएगा सीरीज कनेक्शन. सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या हुआ कि हमने ये कहा कि ये दो वायर्स हैं, इसका भी रेजिस्टेंस आर, इसका भी रेजिस्टेंस आर, और इसको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लिया, प्लस माइनस भी, यहां कनेक्ट कर दिया. ठीक है, तो बल्कि एक काम करिए, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर भी एक्स बोल दो बेटा, इसको कहीं कंफ्यूजन ना हो, आप इसको एक्स बोल दो, स्मॉल एक्स. ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको. इसको स्मॉल एक्स कर दो, समझ रहे ना, कैपिटल आर मत दो, स्मॉल एक्स ले दो. मैंने कहा जो सीरीज है, तो सीरीज में मैं सीरीज का रेजिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ आर एस. आर एस यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये क्या हो गया x प्लस एक्स, ये हो गया 2x. ठीक है. अच्छा, करंट क्या हो जाएगा, करंट इन सीरीज, करंट इन सीरीज हो जाएगा v अपॉन आर एस, यानी कि v अपॉन 2x. देयरफॉर हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, तो उसको मैंने एच एस बोल दिया. समझ रहे हैं ना आप लोग, जो मैं सबस्क्रिप्ट में एस लिख रहा हूँ. यस सर. ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज ये क्या हो जाएगा बेटा, आई स्क्वायर आर टी, तो आई एस स्क्वायर आर एस इंटू टी. तो आई एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, v अपॉन 2x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर एस कितना है 2x मल्टीप्लाइड बाई टी, स्मॉल टी. इसके बाद मैं ये वाला क्वेश्चन रख करके यहाँ कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं मिटा रहा हूँ मैं इधर कर रहा हूँ. ये सॉल्यूशन का ये पोर्शन नोट कर दिया था सभी ने? यस सर. नोट कर दिया था, मिटा दूंगा इसको. ये मिटा दिया, तो एच एस हो गया बेटा बी स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x इंटू टी. 2x इंटू टी, एक x से एक x कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 2 4. ये हो गया v स्क्वायर t अपॉन 2x. इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया इसको मैंने. हीट प्रोड्यूस इन सीरीज आ गया. अब केस सेकंड देखेंगे, पैरेलल कनेक्शन.
ये सेकंड हो गया पैरेलल कनेक्शन। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करें। वही सेम जो दो रेजिस्टेंसेस हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट करके और सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस आप कनेक्ट कर दीजिए। तो ये प्लस माइनस ये बी हो गया और इसका भी रेजिस्टेंस एक्स, इसका भी रेजिस्टेंस एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि पैरेलल वाले रेजिस्टेंस को बोल देंगे आर पी। मैं इधर कर रहा हूं। पैरेलल का रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/x। तो 1/RP दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1 2 अपॉन x। दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो बेटा आरपी कितना हो गया, x/2। बताइए, ठीक है। आरपी की वैल्यू आ गई x/2। रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज x/2। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं उधर का। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई और मुझे चाहिए करंट। ठीक, तो करंट क्या हो जाएगा, मैंने कहा करंट इन पैरेलल, इसको मैंने बोल दिया IP इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, V/R होता है, V/RP। V/RP मतलब V/x/2। और जब मैं देखता हूं कि मेरा डिनोमिनेटर के नीचे भी कोई डिनोमिनेटर होता है तो बेटा ये आ जाता है न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा 2V/x। IP की वैल्यू 2V/x। यहां तक सबको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम। बताइए। Yes, sir. ठीक है, चलिए हाँ जी, आगे देखते हैं कि हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल HP। HP हो जाएगा IP² इंटू RP इंटू T। IP² क्या हो गया, V/x का स्क्वायर इंटू RP क्या है, x/2 इंटू T। तो 2V का होल स्क्वायर क्या हो गया, 4V² अपॉन x² इंटू x/2 इंटू T। एक x से एक x कैंसिल, 2 2 जा 4। तो ये हो गया 2V² T अपॉन x। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल इज इक्वल टू 2V² स्मॉल t अपॉन x। इक्वेशन नंबर 2। ये पूछ रहे हैं कि हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज और हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल, इसका रेशियो बताना है। तो दिस अपॉन दिस ये कर देंगे। ठीक है, मैं ये वाला मिटा दूं जो पैरेलल कनेक्शन वाला डायग्राम था यहाँ पर। Yes, sir. ठीक है, देखिएगा। Therefore, the required ratio ये हो जाएगा HS अपॉन HP मतलब V² T अपॉन 2x अपॉन 2V² T अपॉन x। 2V² T अपॉन x। ऊपर भी एक रैशनल नंबर, नीचे भी एक रैशनल नंबर, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। मतलब सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा V² T इंटू x अपॉन 2V² T इंटू 2x। x से x कैंसिल, V² से V² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे बचा 2 2 जा 4। तो रिक्वायर्ड रेशियो हो गया 1:4। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बताइए सभी को क्लियर है। Sir, last step समझ में नहीं आया। अभी बता रहा हूँ बेटा, एक दूसरे तरीके से बताता हूँ, अगर नहीं आया समझ में दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको।
देखो जी, लास्ट स्टेप में हमने क्या करा, जो हीट प्रोड्यूस है ना, सीरीज वाली जो हीट है उसको पैरेलल वाली हीट से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, मैं इधर कर रहा हूँ, ये वाला मिटा दूं बेटा, ये वाला नोट कर लिया हो सबने तो? Yes, sir. ठीक है, मैं इसको Yes, sir. ठीक है। तो अगर इसमें दिक्कत आ रही हो तो हमें रेशियो निकालना है HS अपॉन HP। मैं लिखूंगा हीट प्रोड्यूस इन सीरीज HS अपॉन हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल, मतलब HS से HP को डिवाइड करना है। तो HS क्या है, V² T अपॉन 2x डिवाइडेड बाई HP। HP क्या है, 2V² T अपॉन x। ठीक है, तो जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है और ये रेसिप्रोकेट हो जाता है। तो V² T अपॉन 2x मल्टीप्लाई बाई x अपॉन 2V² T। V² T से V² T गया, x से x गया, न्यूमरेटर में क्या बचा 1 और डिनोमिनेटर में 2 2 4, तो रेशियो क्या आ गया 1:4। बताओ पार्ट अभी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दो हैं थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, दो एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मैं आपको बस एक्सप्लेन कर देता हूँ और मैं ना इसकी फोटो आपको भेज देता हूँ क्योंकि ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसमें। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मतलब बस एप्लीकेशन आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने होंगे और कुछ भी नहीं है। ये लास्ट था हमारा। देखिए एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट is utilized in the working of electrical heating appliances such as electric iron, electric kettle, electric toaster, electric oven, room heaters, water heaters, etc. Heating wire or coil is generally made of nichrome, which offers very high resistance. तो जैसे रूम हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया और इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, जो कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए जो होता है, तो उसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट हमारा निक्रोम वायर का बनाते हैं। निक्रोम वायर का क्यों बनाते हैं, क्योंकि निक्रोम वायर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसका रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो हीटिंग इफेक्ट भी, हीट भी उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ये फर्स्ट एप्लीकेशन था इसका। सेकंड एप्लीकेशन, एक और एप्लीकेशन देखिएगा, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is utilized in electric bulbs or electric lamps for producing light. लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यूज करा जाता है। Tungsten metal is used for making the filaments of electric bulbs because it has a very high melting point of 3380 degrees Celsius. टंगस्टन वायर यूज करते हैं, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उसके अंदर एक पतला सा वायर होता है जो गोल 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 घूमता रहता है। तो वो जो वायर को जब गोल गोल घुमा देते हैं ना, तो उसी चीज को हम कॉइल बोल देते हैं, COIL कॉइल। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, वो मेल्ट नहीं होता, तो वो करंट अपने अंदर ज्यादा रेसिस्ट करता है, हाई रेसिस्टेंस होता है, तो लाइट भी प्रोड्यूस करता है वो और हीट भी प्रोड्यूस करता है। और नेक्स्ट एप्लीकेशन है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। हाउस होल्ड वायरिंग और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो रेसिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का रेसिस्टेंस जो है वो काफी कम होता है, और जब उसका रेसिस्टेंस काफी कम होता है तो होता क्या है कि वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है। तो जैसे ही हीट एनर्जी बढ़ेगी, बहुत ज्यादा हीट ज्यादा बढ़ने लगेगी, करंट ज्यादा बढ़ेगा सर्किट में, तो रेसिस्टेंस क्योंकि उसका कम है, लो रेसिस्टेंस वाला, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट हो जाने से घर के बाकी जो सर्किट्स हैं, बाकी जो अप्लायंसेस हैं, वो खराब होने से बच जाते हैं। छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्यूज का वायर बस वो मेल्ट हो जाता है, जो 1 या 2 रुपए का आता है। ठीक है, तो ये इसके 3 एप्लीकेशंस हैं। मेन 3 ये थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस है, अगर पूछे जाएंगे तो मेंशन कर देना। ठीक है, तो इसकी मैं आपको फोटोग्राफ भेज देता हूँ। बाकी ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट है। इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक में किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज बता दीजिए। हाँ जी बताइए, सभी ने अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट कर रखे हैं ना इस चैप्टर के? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फिर ये चैप्टर कंप्लीट है। और अब मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट वीक में
नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीकेंड तक आपका फिजिक्स के इस वाले चैप्टर का टेस्ट दूंगा मैं, इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे मैथ्स का एक टेस्ट पेपर बनाकर भेजा था, ऐसे ही फिजिक्स का भी भेजूंगा। वो आपको सॉल्व करके मेरे को भेजना होगा। जो जो बच्चे मेरे को भेज चुके हैं वो टेस्ट, वो ठीक है, Okay, जिन्होंने sir. नहीं भेजा है वो मेरे को कल तक करके दे दे, ठीक है। तो बस फिर अब नया टॉपिक तो क्या स्टार्ट करें, बस ये चैप्टर खत्म है तो आज बस इतना ही करेंगे, जल्दी वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ओके सर। बाकी बाकी कल की छुट्टी है, परसों मिलेंगे आप। यस सर, कल वॉर आ रही है। हाँ कल वॉर आ रही है। अच्छा, बहुत जरूर तो देख रखी है। नहीं सर, देखी तो मैंने भी, बढ़िया है, सर, बार बार देख रहे होंगे। बेकार मूवी है, हाँ अरे बिल्कुल। बेकार है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके सर। हैव अ नाइस वीकेंड। Thank you, sir. Thank you. ओके।